Hi guys, welcome to Sunday Class Online. So, did you watch last week's video? The cartoon video I told you about? I do hope so because it spoke about what is matter. So, I'm not going to go into too much detail. We'll take a quick look at it. Remember I said that matter is everywhere. Why? Because everything is made up of matter. So you are, I am, the tea you drink, the food you eat, the birds you see, everything is made up of matter. So how exactly do we define matter? Matter is anything that has weight, मतलब वजन, and occupies space, मतलब वो जगह लेता है. So it could be anything. From these photographs, I'm sure you can see that an elephant has weight, an apple has weight, milk has weight, and from last week's video, you will know that even air has weight. And all of these things also occupy space. मतलब ये जगह लेते हैं. Something as big as an elephant occupies space, and something as small as an ant also occupies space. A big tank full of oil takes space, and a small cup of tea also takes space. So all of these things are matter because they have weight and they occupy space. वजन and जगह लेता है. ठीक है? So I hope this is clear. Now we will move on. I'm sure all of you remember that this time last year we were using the foldscope in the park. Foldscope क्यों use किया था? क्यों? ये देखने के लिए कि हमारी दुनिया में जो चीजें हैं, what are they actually made up of? So do you remember you took leaves and soil and water and you put it in the foldscope, and when you looked inside you could see small pieces, like छोटे छोटे puzzle के pieces थे जिससे ये हर एक चीज बना हुआ था. And that is exactly what we are going to talk about today. Foldscope से हजार गुना ज़्यादा stronger microscopes होते हैं. You'll find them in those labs that scientists use, and those are used to identify the smallest parts of matter. तो छोटे छोटे particles, छोटे छोटे parts से ये दुनिया हमारी पूरी बनी हुई है. And those small tiny particles are called atom. I'm sure most of you must have heard of this word before. So atom is the basic building block of everything in the world. नहीं समझ में आ रहा है? Confused लग रहा है? Well, how about we talk about Lego first before we talk about atoms. All of you have played with Lego. You have built some amazing things with Lego in Sunday class, right? So you know that the Lego bricks come in different shapes, sizes, colors, right? Some of them are bigger, some of them are smaller, some of them are thicker, some of them are thinner. So it's a whole variety of Lego pieces. But you can use those same Lego pieces to make so many different things. जैसे सुमित ने किया है कि उसका जो Lego set है, from that he has made different types of cars and he's also made a bridge. So just like that, when you take Lego pieces, you can make anything, right? You can make a dinosaur, a plane, a Christmas tree, a house, just about anything. So क्या समझ में आया? That we have Lego pieces which are a little different from each other. But when we make different combinations, we can make so many different things. And that is exactly what atoms are. So imagine that the whole world is made up of Lego and each Lego brick is an atom. So हर चीज अगर हम बहुत बहुत नजदीक से देखेंगे, हर चीज एटम से बनी हुई है. तो दुनिया में अलग अलग एटम्स हैं. They come together in different combinations to make different things. Atoms जोड़ के wood भी बना सकता है. अलग atoms जुड़ गए तो कपड़ा बन गया. कुछ और atoms जुड़ गए तो पानी बन गया. तो अलग अलग atoms जुड़ के अलग अलग चीजें बनती है. And this entire world is made up of atoms. Do you know how small an atom really is? Well, मान लो एक apple है, ठीक है? अब उस एप्पल के अंदर how many atoms are there? To give you an idea, imagine that one apple is the size of the earth. ठीक है, समझ में आया? तो वो जो एक नॉर्मल साइज का एप्पल है, मान लो कि वो जितना बड़ा हमारा अर्थ है, वो एप्पल उतना बड़ा है. तो उसके कंपैरिजन में, do you know the size of an atom? It is the size of the one apple that you're holding in your hand. सोचो कितना छोटा होता है एटम कि अगर एक एप्पल पूरे अर्थ के साइज के होता तो एक एटम उस एप्पल के अंदर एक रियल जो एप्पल होता है सिर्फ उतना छोटा है. So can you imagine how many atoms there are in everything? Isn't it crazy and isn't it absolutely amazing? So now that you know what matter is and you know what atoms are, let's move on to the states of matter. You of course know about solids,
liquids and gas. So imagine that this is one atom. So in a solid state, what happens is that we have lots of atoms and they come close together. ठीक है? तो वो एक दूसरे के आसपास होते हैं and that is when they are solid. When they become liquid, ये एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर जाते हैं and when they are gas, the atoms go very very far away from each other. So we're going to look at this a little closely. So imagine that these colorful balls are atoms and therefore in a solid state these atoms are all close to each other and they all vibrate. Vibrate मतलब थोड़ा हिलता रहता है. Just remember that in a solid the atoms are close together. They're close, they're near each other. Okay? In a liquid the atoms start to drift apart a little bit. थोड़ा एक दूसरे से दूर होते रहते हैं. And in a gas it goes even further away. तो और भी दूर हो जाते हैं. So in a solid they're close to each other. In a liquid slightly far away. In gas even further away. So distance बढ़ता रहता है between the atoms in different states of matter. ठीक है? Clear? Now the question comes कि कुछ चीजें, for example water changes its state, right? Sometimes water is solid when it is ice. Sometimes it is liquid when we drink it. And sometimes it's like gas. जब liquid को boil करते हैं, it turns into gas. So how does this happen? There are two major things which have an impact on this. तो ये जो change करने में कि solid, liquid, gas में जो बदलता रहता है matter, उस पे there are two things that affect them. What is that? One is temperature. We have spoken about this in the water cycle episode, but anyway, I'll tell you quickly. So when you have solid, right? So when you have like ice and you put heat in it, तो उसको गर्म कर दो, then it becomes liquid. Like say an ice cream. अगर ice cream तो बिल्कुल frozen होता है. Now if you keep it outside, it is hot outside, right? And it starts melting, so it becomes like liquid. So from solid to liquid जब होता है, it is melting. Now say for example you take a pot of water. What happens when you heat the water? It starts bubbling up and that water turns into gas. What was that called? Evaporation. From liquid to gas जब होता है, it's called evaporation. Remember in the water cycle I told you that water turns into gas, it goes up and then condensation takes place and that same gas again becomes liquid. So जब gas liquid बन जाता है, that is called condensation. जो ice cream आपका melt कर रहा था, if you put that in the freezer, then what will happen? It will become solid again. मतलब वो freeze कर जाएगा. तो क्या हो गया? Freezing हो गया. So let us look at this again very quickly. Let's go back to our atoms. So this is a solid. When you put heat in it, what happens? It becomes liquid. When you put more heat in it, what happens? It becomes gas, right? Now इसका उल्टा. Gas से ठंडा कर दिया तो they'll come closer, they'll be like liquid. And now और भी ठंडा कर दिया तो they will come even closer and be a solid. So this is how temperature has an effect on matter. Now we will look at the second thing, pressure. Pressure मतलब किसी चीज पे दबाव डालना, कुछ वजन डाल देना, उसको कहते हैं pressure डालना. So first of all remember that solid and liquid पे pressure का कुछ ज़्यादा effect नहीं होता है. But the major impact that pressure has is on gas. ठीक है? वो कैसे? Look at this diagram very carefully. You'll see that there are lots of atoms and they are gas atoms. So वो एक दूसरे से दूर है. So now what has happened is that some weight has been added on it. So now these atoms are forced to come closer to each other. और weight डाल दिया और pressure डाल दिया तो वो और भी नजदीक हो गए. तो अब क्या हुआ? वो बन गया liquid. So from gas it turned into liquid because of all the pressure, all the weight that was applied on these atoms. So what are the two things that have an impact on the states of matter? First is temperature and second is pressure. So let's quickly look at the things we have learned today. We have learned about matter, what? Anything which has weight or takes up space. Second, the states of matter, solid, liquid and gas. Third, you know what an atom is. Atom is the basic building block of any matter, right? तो दुनिया में सब कुछ atom से बना हुआ है.
And fourth point that you've learned is that temperature and pressure, these are the two things that have an impact on the states of matter. It brings about a change in the state of a matter. Okay? So this was today's class. If it seems a little confusing, feel free to ask me, of course. And next class, we are going to continue this topic where we will be talking more about atoms and molecules. So for this week, we are focusing on the states of matter because this is a topic which I feel is important for everybody to know. ठीक है? तो ये आप अच्छे से जान लो, अच्छे से सीख लो, so that आगे जिंदगी में you will never have a problem with this. Because this is a topic that they will teach you in school and this is something that you should know about anyway, right? क्योंकि आइसक्रीम जब आपकी मेल्ट हो रही होगी, आपको पता होना चाहिए ना कि ये गर्मी के वजह से मेल्ट हो रही है, तो चलो चलो फ्रिज में डालना पड़ेगा. So I hope you enjoyed today's class. I did because I got to play. So yeah, so that was fun, and I hope you had fun too. Please do your homework, send it on time, and win stars. It was nice to see some of you last week, and I hope that all of us get to meet again soon. ठीक है? So take care, stay safe. I'll see you again next Sunday. Bye bye. हेलो कैंपुर के चिपकलियों, मेरी दाढ़ी बढ़ती जा रही है और तुम्हारे बुद्धि घटता जा रहा है, तो इसको लेके आज हम कुछ चीज़ें आपको बता देंगे. सबका इक्वेशन लेके सब चीज़ अच्छा हो रहा है, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए, आपको स्टेटमेंट लिखना बड़ा ज़रूरी होता है मैथमेटिक्स में. जब आप ये x a h y b वाला काम कर रहे हैं ना, आपको सबको बताना है कि आप क्या x को क्या मान के चल रहे हैं, ए को क्या मान के चल रही है, ये बताना ज़रूरी होता है. क्योंकि हमने पहले क्लास में किया था, फर्स्ट क्लास में, कि ये सब ए बी सी डी इसका मतलब क्या है सबको बताना ज़रूरी है. और अगर आप इसको लिखे साफ साफ तो आपको भी साफ हो जाएगा कि आगे कैसे बढ़े. तो सीक्रेट हमारे जो आगे देखेगा उसके लिए भी फ़ायदा है, जो आपका काम देखेगा, और दूसरा आपका भी सोचने में ये मदद करेगा. ठीक है? कुछ लोग अच्छे अच्छे स्टेटमेंट लिख रहे हो, जैसे कि निधि के स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे हैं, और उसने निधि तुमने सिली कैलकुलेशन मिस्टेक करके डुबोया खुद को, लेकिन तुमने बहुत अच्छा ऐसे स्टेटमेंट्स लिखा है. स्टेटमेंट्स लिखो तो सोच भी क्लियर हो जाता है. आज डिस्कस करेंगे पिछले बार के सॉल्यूशंस. ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स फिर से होमवर्क में देंगे आपको. पहला प्रॉब्लम हमें ये बोलते हैं कि हमारे पास दो सीक्रेट नंबर है, दोनों में कोई भी हमें पता नहीं है. तो एक सीक्रेट नंबर है, फिर और एक दूसरा सीक्रेट नंबर है. ये बस बताया गया है कि दोनों को अगर हम जोड़ दें तो उसका आंसर होता है 55. तो दोनों को तराजू के एक साइड पे रखें तो ये दोनों मिला के तराजू के उस साइड बनेगा 55. ठीक है? तो अभी स्टेटमेंट लिखना हमने बताया कि ज़रूरी है, तो पहले आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे वो साफ साफ बता दीजिए. जैसे कि हम लिखेंगे एक नंबर को हम ए मान के चलेंगे, तो तो एक नंबर को ए मान के चलते. मान लो कि ये वाला जो नंबर है इसको हमने ए मान लिया. ठीक है? दूसरा नंबर के लिए क्या दूसरा बक्सा बनाना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पता है कि दूसरा नंबर पहले वाले से 9 बड़ा है. तो हम ये लिख सकते हैं दूसरा नंबर a+9 हो गया. अब क्या करें? अब ये भी हमें पता है कि दोनों को जोड़ के 55 बनता है, तो तराजू बना लेते हैं. पहला नंबर है a, दूसरा नंबर है a+9, और तराजू के उस साइड बन जाएगा 55. अभी यहाँ से सॉल्व करना बड़ा आसान काम है. तो एक नंबर बन गया हमारा 23 यानी कि 23. तो जो 1 नंबर ए था ये निकल आया, ये है हमारा 23. तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली बन जाएगा ए का जो है +9, यानी कि दूसरा नंबर क्या हुआ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं
ए का हमें पता चल गया है, सो यहाँ पे 23 + 9 जो कि बनता है 32। तो दूसरा नंबर हमारा बन गया 32। अब चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं क्विकली। अगर आप चेक कर ले ये दोनों नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जोड़ के आना चाहिए हमारा 55। तो क्विकली हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ठीक हुआ है कि नहीं। 32 और 23 को जोड़ ले, 2 and 3 5, 5 लग रहा है सब कुछ सही है। सेकंड क्वेश्चन पे आपका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि हर्षिता और अमन शुक्र बाजार गए। हर्षिता स्पेंड हाफ द मनी दैट अमन स्पेंड, मतलब अमन ने जो स्पेंड किया हर्षिता ने उसका आधा स्पेंड किया। तो हम ऐसे सोच सकते हो उसको कि दोनों बाज़ार गए, ये हर्षिता वाला बक्सा है क्योंकि हमें पता नहीं है कितना स्पेंड हुआ। फिर अमन भी गया, अमन भी कुछ स्पेंड किया और दोनों मिला के हमें पता है कितना स्पेंड हुआ, 360 रुपये। तो तराजू बनेगा तो ऐसे बनेगा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ स्टेटमेंट वगैरह लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें पता नहीं कि ये क्या है और हमें पता नहीं है कि ये क्या है। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं कि अमन जो स्पेंड किया है उसको कुछ मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये मान लिया क्योंकि हमें पता नहीं है, उसको बक्सा बना लिया कि अमन ने जो स्पेंड किया वो x रुपए थे। अब हर्षिता ने कितना स्पेंड किया ये हमें पता है कि हर्षिता ने अमन का आधा स्पेंड किया। तो हम लिख सकते हैं therefore हर्षिता स्पेंड x डिवाइडेड बाई 2 जो कि x का आधा होता है। अभी इसको सॉल्व करने का ये एकमात्र उपाय नहीं है, आपका थोड़ा अलग भी हो सकता है। जैसे कि आपने हर्षिता ने जो स्पेंड किया है उसको आप x ले सकते हो और अमन ने जो स्पेंड किया है वो 2x ले सकते हो। तो ऐसे भी चलेगा, बस याद रखना आपके स्टेटमेंट के ज़रिए कि बस याद रखना अपने स्टेटमेंट से कि किस चीज़ को आप x मान के चल रहे हो। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग स्टेटमेंट भी हो सकता है। अब ये हमें पता है कि दोनों को मिला के 360 रुपये खर्चा हुआ है। तो अभी हम लिख सकते हैं कि x जो कि अमन ने स्पेंड किया था प्लस x/2 जो कि हर्षिता ने स्पेंड किया था, जो अमन का आधा है, कुल मिला के खर्चा हुआ है 360 रुपये। अब ऐसा है, अभी ऐसा आया तो देखो हम नीचे 2 अगर उड़ाना है, यहाँ पे एक 2 आ गया है उसको उड़ा देना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरा इक्वेशन को। तो हमारा आता है 2x प्लस x इक्वल टू 720 और 3x इक्वल टू 720। तो फिर x को निकालने के लिए हमें डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा पूरा इक्वेशन को। तो यहाँ पे 3 कट जाएगा, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड हो जाएगा इस साइड पे, तराजू के इस साइड पे। तो यहाँ आएगा 240। तो इससे क्या पता चलता है x इक्वल टू 240 हमारा निकल के आ गया। लेकिन हमने पहले ही बोला है कि x क्या था, तो x था जो अमाउंट अमन ने स्पेंड किया था। तो अभी हम लिख सकते हैं अमन स्पेंड ₹240, हर्षिता स्पेंड उसका आधा है ना, हमने पहले बोल दिया था x/2, ये हर्षिता का एक्सपेंडिचर है। तो 240 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है ₹120। बस हो गया, दोनों का एक्सपेंडिचर निकल आया। अब फिर से चेक कर लेते, कुल मिला के इसको आना है 360। तो 240 और 120 जो दोनों ने स्पेंड किया है कुल मिला के बन जाता है 360। तो लग रहा है ये वाला भी। आ जाते हैं आखिरी वाले में जो कि सबसे टफ वाला था। तो कुछ लोगों ने कर दिया बहुत अच्छा, कुछ लोगों ने आधा किया है, वो भी अच्छा है। तो हम दिखा देते उसको कैसे करें। लेट माई एज बी x, मतलब मैं अपना उम्र x मान के चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है, बक्सा बना लिया। Therefore x-4 होगा भाई का एज, वो मेरे से 4 साल छोटा है। तो ये है लेकिन अब का एज है ना, हमने क्या बोला है कि लेट माई एज बी x, मतलब अभी मैं x साल हूँ
1 साल की उम्र है मेरी, और मेरे भाई का जो है x-4 साल की उम्र है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, 23 ईयर्स अगो क्या उम्र थे। तो हम अभी लिखेंगे 23 ईयर्स अगो की बात, जैसे फिल्मों में दिखाता है फ्लैशबैक में 23 ईयर्स अगो क्या था। तो माई एज, मेरा उम्र था अब के उम्र से 23 साल कम। भाई का उम्र क्या होगा, भाई का जो अभी उम्र है उससे 23 साल कम। अभी उम्र है x-4, अब 23 साल पहले उसका था x-4-23, जो कि आपको दिख ही जाएगा। ये हम सिंप्लीफाई थोड़ा कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू x-27। तो मेरा एज था x-23, भाई का एज था x-27, और ये हमें पता है कि कुल मिला के दोनों का एज था, जोड़ दो तो 36 साल। तो हम अभी तराजू बना सकते हैं और ये लिख सकते हैं कि मेरा जो एज था प्लस भाई का जो एज था वो कुल मिला के बनता है 36। ठीक है, बस हो गया। अब कुछ करना नहीं है, सिंप्लीफाई करके सॉल्व कीजिए। तो अभी लिखेंगे कि 2x, यहाँ पे x और x हमने ले लिया, माइनस 50, 23 और 27 दोनों को माइनस करने से 50 हो जाता है, ये हो जाता है 36, और 2x इक्वल टू प्लस 50 दोनों साइड पे कर देते हैं, प्लस 50 हो जाता है, तो ये बन जाता है फिर 86। तो x निकालने के लिए डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, ये आ गया 43। तो ये निकल के आ गया कि मेरा अब का एज है 43, क्योंकि मैंने बोला था लेट माई एज बी 43। तो आज मेरा भाई का एज कितना है, ये निकालने के, भाई का एज है हमें पता ही है कि x-4 होना है, तो हम लिख सकते हैं माई ब्रदर्स एज टुडे। 23 साल पहले का एज दो तो गड़बड़ हो जाएगा, ब्रदर्स एज टुडे इज, ये हो गया x-4। हमें पता है कि x ऑलरेडी हमें निकाल लिया है कि 43 है, जो कि मेरा उम्र है। तो ये हो गया 43 माइनस 4 इक्वल टू 39, और ये बन गया भाई का एज। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आपके पास पहुंच जाएंगे। होमवर्क कर डालिए और दिमाग की बत्ती जला डालिए।